Hello everyone. So welcome to another video. So in this video we are going to discuss the top 25 MCQs related with Indian economy consisting of the news which was there in the 2025. So सबसे महत्वपूर्ण 25 MCQs डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो चलो let us start. So I would want all of you to solve the MCQs along with me. All right? चलो. So question number 1, it says that International Monetary Fund has recently projected that Indian economy will become the world's fourth largest economy in 2025, surpassing Japan. All right. In this context, consider the following. First, goods produced for self-consumption are included in the calculation of GDP. Second, goods produced but remaining unsold are not included in the calculation of GDP. Which of the statement given above is are correct? So one thing I would like to highlight, इस बार GDP related news has become very important. So GDP as a topic, both vis-a-vis current affairs as well as जो उसका static portion है, that is very very important for the upcoming prelims 2026. बहुत सी करंट रिलेटेड न्यूज रही हैं, बहुत सी अपडेट रही हैं जीडीपी से रिलेटेड. For example, fourth largest economy as per the IMF projections based on the nominal exchange rate. ऑलराइट, इंडिया हो जाएगा इन 2025. तो एक वो इंपॉर्टेंट न्यूज थी. फिर जीडीपी कैलकुलेशन से रिलेटेड बहुत सी न्यूज रही है लास्ट फ्यू मंथ्स में, आप देखें. देन बेस रिवीजन चेंज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है विच विल बी हैपनिंग इन फेब 2026. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं जीडीपी रिलेटेड इश्यूज से. तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी रिलेटेड थिंग्स, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. सो अगर हम क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं इंक्लूड होता है जीडीपी के बारे में देखें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. इट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है विच यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑलराइट, व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विसेज, so only marketable services are included in the calculation of GDP. Non-marketable services, all right, for example unpaid labor, जो घर पे में भी कहीं पे भी हो रहा है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एलिंग पेरेंट्स, ऑलराइट, सो वो दैट इज नॉट इंक्लूडेड, यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो ये ध्यान रखेंगे. Second statement, good produced but remaining unsold. So what does it mean? It means inventory. कि goods produced तो हो गया है but it has remained unsold, let us say in that financial year, are not included. It is saying that are not included in the calculation of GDP. So it is absolutely wrong statement. So it is included in the calculation of GDP. जीडीपी की डिफिनीशन अगर आप देखें, गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द गिवन फाइनेंशियल ईयर. सो हमेशा प्रोड्यूस्ड की बात हो रही है, वहां कहीं सेल की बात नहीं हो रही है. ऑलराइट, सो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इररेस्पेक्टिव कि वो गुड्स उस फाइनेंशियल ईयर में सेल हो पाया कि नहीं हो पाया, that will be included in the calculation of GDP. So, which of the following is correct? So, A only. All right. So, this is the answer. A only, because statement 2 is wrong. ठीक है, तो ये सारी चीज देख लेंगे. यहाँ पे what is included, what is not included. All right. Production of goods for self consumption, it is included. All right. Inventories
it is included. Imputed rent of owner occupied houses, that is also included. And own account production of fixed asset by household, firms and government, these are included in the calculation of GDP. क्या नहीं इंक्लूड होता है? इंटरमीडिएट गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ऑलराइट, बट इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो सर्विसेज रेंडर कर रही हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू आर नो परचेजिंग सेकेंड हैंड हाउस, ऑलराइट, ऑलरेडी नो सेकेंड हैंड हाउस कह दीजिए, या लेट अस से सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं आप थ्रू लेट अस से कास्ट 24 एटसेट्रा। सो जो आप परचेज कर रहे हैं दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट द सर्विसेज विच द कास्ट 24 is providing, the services which the no these companies are provided, that will be included. तो broker commission would be included, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो ये है ट्रांसफर पेमेंट्स, यूनिलेटरल पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ऑलराइट, तो दैट इज द आंसर। तो यहीं पे एक क्वेश्चन कमेंट में बताइए कि ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में तो नहीं इंक्लूड होते हैं, बट जीएनपी में इंक्लूड होते हैं या नहीं। जस्ट कमेंट में करके बताइए वेदर जीएनपी में इंक्लूड होते हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता दिए। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया। सो सेल परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये सारी चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं। कैपिटल गेन आपको कोई हो रहा है, ऑलराइट, वो भी नहीं इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल, योर पेरेंट्स हैव बॉट अ लैंड लेट अस से 10 years back of 1 lakh rupees, now it is selling, no, your parents sold it at 10 lakh rupees, so 9 lakh rupees का आपका कैपिटल गेन हुआ। whether this will be included in GDP or not, so absolutely not. Windfall gains, they are not included. Unpaid domestic services not included, and illegal income obviously not included. All right, so these are the things which are not included in the calculation of GDP. So let us move to the question number 2. Consider the following statement regarding the goods and services tax council, GST council से ये क्वेश्चन बात कर रहा है। तो GST has also been in the news। तो GST बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑल्टरनेट ईयर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछ ही लेते हैं। अब जीएसटी 2.0 आया था सितंबर में, लास्ट सितंबर, सो इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट। तो एक बार देखते हैं। जीएसटी काउंसिल, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर 279A। Second, cabinet secretary is the ex officio secretary of the GST council. Third, all decision of the GST councils are binding on the union and the states. Fourth, the union government has veto power in the GST council. Which of the statement given above is are correct? तो GST council बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। आई नो यू कैन से एवरी ईयर वो रहेगा मोस्टली। राइट, सो क्या क्या चीजें बात कर रहे हैं। पहला, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। सो जीएसटी काउंसिल इज अ constitutional body, which article is dealing with GST council? Article 279A. GST council has come with which amendment? Constitutional amendment 101, constitutional amendment, GST आया। Alright, then second is related with composition से पूछ रहा है। तो it is saying that cabinet secretary, तो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी रेवेन्यू रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, that is what the who is the ex officio secretary of the GST council. So cabinet secretary is not there. Alright, secretary revenue department का जो रहता है वो ex officio secretary है of GST council. All decisions of GST council are binding. Alright, so ऐसा नहीं है, they are not binding, they are mostly recommendatory in nature, they are mostly persuasive in nature, ठीक है, but they are not binding। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे रखा है। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया। द यूनियन गवर्नमेंट हैज वीटो पावर, तो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो जीएसटी काउंसिल में हाउ द डिसीजन मेकिंग टेक्स प्लेस, किसी भी
डिसीजन के लिए वी रिक्वायर वोट्स, तो मेजोरिटी ऑफ 3/4 इतना हमें चाहिए। यहां सेंटर के लिए क्या वोट परसेंटेज है, वोट वेटेज है, क्या सेंटर का क्या है, 1/3। सेंटर का क्या वेटेज है, नो जीएसटी में क्या वोट वेटेज है, दैट इज 1/3 जीएसटी काउंसिल में। ऑलराइट, एंड ऑल द स्टेट्स उनका क्या है, 2/3। all right, 2/3, and every state has a same vote, all right, equal number of votes, all right। तो वो एक important है। तो that is what the idea। तो यहाँ पे union government does not have veto power। This is how the decision making takes place in the GST council। For majority 3/4, center का weightage is 1/3, all other states का combined का weightage is 2/3। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी है कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो बोथ हैज टू कम टुगेदर। सिंगल हैंडेडली नाइदर सेंटर कैन टेक डिसीजन और सिंगल हैंडेडली नॉट ऑल द स्टेट्स कैन टेक डिसीजन। दैट इज वाई जीएसटी काउंसिल को अ गुड एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ऑलराइट, दैट इज व्हाट द आइडिया। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, तो आंसर इज ए ओनली। ठीक है, so this is there। GST Council is a constitutional body। Secretary Revenue, all right, Secretary Revenue serves as a GST Council ex officio secretary, all right। So third is keep no, it is not binding, it is mostly persuasive, value recommendatory in nature, all right। And union government has so does not have all right veto power, like to does not have uh, this is some error, does not have veto power in the GST council। ठीक है, तो ये ध्यान लेंगे। Which of the following is next question, which of the following is incorrect regarding the recently constituted पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बाय आरबीआई। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है, इसको हमने इकोनॉमी रिकैप में भी कवर किया। Right, it has been constituted under the Payment and Settlement Act 2007। It has replaced the erstwhile Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Services। It comprises of 6 members, including 3 government nominees, similar to BPSS, that is Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement Services। It will oversee the functioning of payment system in the country। So recently, very recently, the Payment Regulatory Board has been constituted by the RBI। So it has been constituted under the Payment and Settlement Act 2007। So it is absolutely correct। All right. Second, it has replaced the erstwhile Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System। So this is also correct statement। It has replaced BPSS। Third, it comprises of 6 members, including 3 government nominees, similar to BPSS। So this statement is not correct। दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर हम पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें तो इट कंप्राइजेज ऑफ टोटल 6 members। 3 members are from RBI and 3 members are from government nominee। ऑलराइट, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की बात करें एंड चेयरमैन इज आरबीआई गवर्नर। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट BPSS, so it comprised of 5 members, all were from RBI। So it has no government nominee, no government nominee। All right, तो ये एक important है। So that is what the idea। So this is not correct। Fourth, it will oversee the functioning of payment system in the country। So this is a correct statement। So question is asking incorrect। So option or statement 3 is incorrect। That is why it becomes a correct answer for this question। All right, correct answer for this question। All right, so comment करके बताइए who is the overall regulator of payment system in the country। कौन रेगुलेट करता है? All right, तो बताइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, आरबीआई करता है, कौन करता है? तो क्वेश्चन 3 आंसर इज 3। ऑलराइट, so statement 1 is correct।
Statement 2 is correct. Statement 3 is not correct. All right. And statement 4 is correct. Okay. So let us move to the next question. Consider the following statement regarding the national banking financial companies. So NBFC काफी न्यूज में रहते हैं. All right. It is a usually a hot topic, banking related. काफी one form or the other way में questions आ ही जाते हैं. All right. So NBFCs, what are the statements? All NBFCs in India are deposit taking. And second, all NBFC in India are regulated by Reserve Bank of India. All NBFCs are regulated by Reserve Bank of India. So अगर हम statement 1 देखें तो it is absolutely incorrect. It is not correct. क्यों? Because NBFCs can be deposit taking, and it can be non deposit taking. ऑलराइट, बहुत तरीके से हो सकता है. डिपॉजिट में हमेशा ध्यान रखिए कि इट कैन बी ओनली टाइम डिपॉजिट, इट कैन नॉट बी डिमांड डिपॉजिट. यही डिफरेंस है एनबीएफसीज और रेगुलर बैंक्स में. ठीक है. सेकेंड, ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट statement. There are several NBFCs which are regulated by other entities because of the nature of functions it performs. All right. For example, जैसे angel fund, venture funds, these are regulated by SEBI. All right. These are regulated by SEBI. तो ऐसा नहीं है कि सारे NBFCs are regulated by RBI in the country. तो ये चीज ध्यान रखेंगे. So both the statements are wrong here. So correct answer is option D. All right. So NBFCs in India are deposit taking and it can be non-deposit taking. So statement 1 is not correct. Statement 2 is also not correct. All right. So few are related by SEBI. For example, जैसे insurance companies, they are regulated by IRDAI. Chit fund हो गया. These are NBFCs. They are regulated by respective state government. Nidhi companies हो गया. It is regulated by Ministry of Corporate Affairs. All right. So not all NBFCs are regulated by RBI in the country. ये ध्यान रखेंगे. Next question. India's first national household income survey will be launched in 2026. In this context, consider the following. Statement 1, it will be conducted by RBI. All right. Second, it will cover household income only from salaries and wages. Third, it will allow for interpersonal comparison of incomes and the analysis of sources and pattern of income generation. Which of the statement is are correct here? Right. तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियाज फर्स्ट NHIS, नेशनल हाउस होल्ड इनकम सर्वे इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2026. तो इट विल बी कंडक्टेड बाय RBI. नहीं, ये गलत है. इट इज नॉट कंडक्टेड बाय RBI, रादर देन इट विल बी कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये कंडक्ट करेगा इसको. सेकेंड, इट विल कवर हाउस होल्ड इनकम ओनली फ्रॉम सैलरीज एंड वेजेस. तो ऐसा भी नहीं है. हर डिफरेंट चीजों से रिलेटेड जो आपकी इनकम आ रही है दैट विल बी इंक्लूडेड, और नॉट ओनली कि बस खाली सैलरीज एंड वेजेस देख रहे हैं. यह थर्ड, इट विल अलाउ फॉर इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ इनकम्स एंड द एनालिसिस ऑफ सोर्सेज एंड पैटर्न ऑफ इनकम जनरेशन. तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है कि एक इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ इनकम नो हम कर सकते हैं जो भी हम डेटा लेंगे सर्वे में, एंड देन एनालिसिस ऑफ सोर्सेज एंड पैटर्न ऑफ इनकम जनरेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज ओनली करेक्ट. सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ऑलराइट, so National Statistical Office MOSPI will conduct it. It will cover all sources. All right, salaries and wages, farming and small businesses, self-employment, casual labor, remittances, सबसे पेंशन, सारी चीजों से जो आपका इनकम आ रहा है वो इसमें कवर होगा. All right, so that is what the idea. And statement 3 is correct. Let us move to the next question. Which of the following is correct regarding stable coins?
सो अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, स्टेबल कॉइन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर लेस volatile than the cryptocurrency. All right. Second, at present, all the stable coins are backed by US dollars. Third, most traded stable coin in the world is PayPal USD. Fourth, they have universal acceptability. All right. So stable coins. So stable coins are a component or a type of cryptocurrency, you can say. एक चीज ध्यान रखिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी में one of the most, you can say, disadvantage of cryptocurrency is the extreme volatility in its value. All right, extreme volatility. कहीं ये लड़त से $1 लाख रहेगा, सडनली ये फिर $90,000 की वैल्यू हो गई, लड़त से बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, देन लड़त से $50,000 की वैल्यू हो गई। तो जो वैल्यू है दैट इज मोर वोलाटाइल, दैट इज वाई इट इज नॉट वेरी मच यूज्ड इन द डे टू डे एक्सचेंज। इसी कारण ये एक्सचेंज के लिए जब हम कर रहे हैं, बिकॉज वैल्यू इज वेरी मच फ्लक्चुएशन। सो इसी के लिए हम दूसरी बात कर रहे हैं, दैट इज स्टेबल कॉइन whose value remains stable over a period of time. Why? Because it is backed by any external reference. All right. That external reference can be US dollar, that external reference can be gold, that external reference can be oil, etc. All right. So they are less volatile than cryptocurrency. Answer is, this statement is absolutely correct. At present, all stable coins are backed by US dollar. तो ऐसा नहीं है। तो it is they are backed by US dollar. They can be backed by gold. They can be backed by oil, etc. तो ये है। Third, most traded stable coin in the world is PayPal USD. तो this is also not correct. Here यहाँ पे है, this is Tether. All right. बिटकॉइन एंड इथेरियम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी है या स्टेबल कॉइन बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं टीथर। तो दैट इज देयर, सो इट इज आल्सो नॉट करेक्ट। दे हैव यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अलग तो ऐसा कोई नहीं है कि दे हैव यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, सो इट इज आल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हियर इज A1 ओनली। राइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया, दैट इज व्हाट द आइडिया। ठीक है, let's see the next question. Consider the following statement regarding the securities transaction tax, that is STT. It is a tax levied on buying and selling of securities listed on recognized stock exchange. Second, it is applicable only on profits during trading. Third, Supreme Court recently upheld the constitutional validity of securities transaction tax. All right. So that is what the idea. So that is this is the question. So securities transaction tax. All right. So statement one, it is a tax levied on buying and selling of securities listed on the recognized stock exchange. So this is absolutely correct statement. All right. तो एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि when we are saying that sale and purchase is happening on recognized stock exchange, तो लगता है अगर आप ओवर द काउंटर सेल एंड परचेज कर रहे हैं या इनफॉर्मल मार्केट में कर रहे हैं, तो देयर एसटीटी इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एनएससी एटसेट्रा में कर रहे हैं, देन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह खरीदते बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। तो एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्ड में आ रहा है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे प्रॉफिट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या लॉस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ऑलराइट, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑलराइट, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इंपोज हो जाएगा और कंपल्सरली देना होगा। तो आइदर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ इट।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस वर्ड इज यूज्ड इज ट्रांजैक्शन, द वर्ड यूज इज ट्रांजैक्शन, तो दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज अप्लीकेबल चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है. इफ यू आर मेकिंग अ ट्रांजैक्शन यू हैव टू पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तो ये नहीं है. अभी एक प्लिया फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, तो अभी कुछ अपहेल्ड नहीं किया है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ऑलराइट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सो ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन ए ओनली. ऑलराइट, तो ये आंसर है. ऑलराइट, स्टेटमेंट ए वन इज करेक्ट. ऑलराइट, तो दिस इज देयर. नेक्स्ट, which of the following correctly describes the Goldilocks? This term has been very much in the news. Scenario in an Indian economy. Alright, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो मंथली डॉक्यूमेंट आता है that has also said that India is experiencing Goldilocks moment in the economy. RBI governor has also said that India is experiencing Goldilocks moment in the Indian economy. तो किसका मतलब क्या होता है? Statement one, it is a situation when gold prices in the economy is increasing. Second, it is a situation when prices of commodity falls leading to decline in GDP. Third, it is a situation of stable GDP with low inflation. Fourth, it is a situation when the government issues sovereign gold bond to reduce its imports. ऑलराइट, तो ऑप्शन इज 3. तो गोल्डीलॉक तो एक स्टेबल जीडीपी ग्रोथ हो रही है. ध्यान सुनेंगे, एक स्टेबल जीडीपी ग्रोथ हो रही है और वो जीडीपी ग्रोथ ऐसी है कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है. तो गोल्डीलॉक सिनेरियो जब हम बोलते हैं तो इट इज काइंड ऑफ आइडियल सिनेरियो इन द इकोनॉमी. जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है. ऑलराइट, तो अभी राइट नाउ इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑलराइट, लो इन्फ्लेशन है, आप सीपीआई डब्ल्यूपीआई देखेंगे, एंड स्टिल देयर इज सम रूम फॉर रेट कट एज डन बाय द एमपीसी इन द प्रीवियस मीटिंग. तो ये सारी जो चीजें हैं मिलके बनाती हैं दिस इज द गोल्डीलॉक मोमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर हियर इज स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट यहां पे. ठीक है, तो दिस इज देयर. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. ऑलराइट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये भी न्यूज में रहा है काफी. सो स्टेटमेंट 1, all the not for profit organization in the country are eligible to register on social stock exchange. Second, recently Pratham became the first NGO in India to be listed on social stock exchange. Like, so social stock exchange is a new category within the BSC and NSC जहां पे एनजीओज, जहां पे फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज लिस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर से पैसे रेज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज. अभी जैसे अभी अगर एनजीओ को देखें तो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन कॉर्पोरेट ग्रांट्स, दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स. तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है दैट अलाउज फॉर दीज एनजीओज for profit social enterprises to list on it and to raise money from the investors. तो ये एक मतलब है. Like, तो all not for profit organization in country are eligible to register on social stock exchange. तो ये गलत है. Alright, not all profit for and all non-profit or all NGOs are not eligible. ऐसे एनजीओ जहां पे कॉर्पोरेट्स पे डिपेंडेंसी है फॉर मोर देन 50% ऑफ इट्स फंडिंग, वो नहीं एलिजिबल है, वो नहीं एलिजिबल है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, प्रथम बिकेम द फर्स्ट एनजीओ. यहां पे प्रथम नहीं है, यहां पे कौन सा है? उन्नति फाउंडेशन, उन्नति फाउंडेशन ऑफ बैंगलोर, उन्नति फाउंडेशन. तो ये ध्यान रखिएगा. So this is also not correct. This is also not correct. All right. So answer is option D. Option D. It is very important question. Option D. All right. Comment में बताइए कितने लोग का सही हो गया है.
How many of you got it right? So statement 1 is also not correct and statement 2 is also not correct. Moving to question number 10. With reference to digital gold or e-gold products, consider the following statement. First, it refers to buying gold without physically possessing the precious metal, that is gold. Second, investing in digital gold does not require demat account, does not require. Third, gold ETF, electronic gold receipt, and sovereign gold bond are examples of digital gold. तो अभी डिजिटल गोल्ड क्यों न्यूज में था? हमने अपने इकोनॉमी रिकैप में भी कवर किया था कि सेबी ने एक पब्लिक एडवाइजरी लाई थी, लोगों को कॉशियस किया था, दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड. तो कई बार अब डिजिटल गोल्ड बेसिकली क्या है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. डिजिटल गोल्ड इज बाइंग गोल्ड विदाउट फिजिकली प्रोसेसिंग द प्रीशियस मटेरियल. आप बोलते होगे कि देखते होगे कि 10 रुपीज लगा दीजिए, 20 रुपीज लगा दीजिए, 100 रुपीज लगा दीजिए, 50 रुपीज. डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे दे आर सेइंग दैट ओके वी आर इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड. ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट द आइडिया. सेकेंड, इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड डज नॉट रिक्वायर डीमैट अकाउंट. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. इट डज नॉट रिक्वायर डीमैट अकाउंट. ठीक है. थर्ड, gold ETF, electronic gold receipt and sovereign gold bonds are examples of digital golds. So ये completely incorrect statements है. Alright, तो digital gold जो है it is not regulated by SEBI. It is not regulated by SEBI. It is outside the purview of regulation of SEBI. It is not regulated by SEBI. But ये जारी जो सिक्योरिटीज हैं, दीज आर रेगुलेटेड बाय सेबीज. तो डिजिटल गोल्ड का एग्जांपल ये सब नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया. दीज आर द सिक्योरिटीज विच आर रेगुलेटेड बाय सेबी. गोल्ड ईटीएफ को भी करता है, ईजीआर को भी करता है, एसजीबी भी करता है. ऑलराइट, but digital gold is not regulated by SEBI. It is a security which is not regulated by SEBI. तो ध्यान से रखिएगा, these are not the examples of digital gold. इन सब में जो भी गोल्ड ईटीएफ है, ईसीबी, सब सारे इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट चाहिए. ठीक है. तो दैट इज व्हाट द आइडिया. तो इज आर करेक्ट. तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. सेबी डज नॉट रेगुलेट डिजिटल गोल्ड्स. ऑलराइट, तो डिजिटल गोल्ड्स आर नीदर नोटिफाइड एज सिक्योरिटीज, नॉट रेगुलेटेड एज कमोडिटी डेरिवेटिव्स. ठीक है. तो ये एक थोड़ी चीज ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी. विथ रिगार्ड टू इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत न्यूज में है. Export-oriented sectors such as IT and pharmaceuticals are expected to benefit. Foreign education for Indians will become costly. Government may benefit as it will reduce cost of servicing foreign denominated debt and it may boost foreign tourism to India. Alright, so हमने इकोनॉमी रिकैप में भी काफी इन डेप्थ एंड इन डिटेल कवर किया था ये सारी चीजें. इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी से बात कर रहे हैं. तो एक्सपोर्ट, डेफिनेटली एक्सपोर्ट विल बिकम कॉम्पिटिटिव. ऑलराइट, और हमारे जो डॉलर अर्निंग सेक्टर्स हैं दैट विल बेनिफिट्स. ठीक है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देन फॉरेन एजुकेशन फॉर इंडियंस विल बिकम कॉस्टली. सो ये ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑलराइट, बिकॉज फॉरेन में जाएंगे तो डॉलर में पे करना है, उसके लिए डॉलर बाय करना होगा. डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रहा है. लेट अस से $1 80 रुपीज का था अर्लियर, नाउ $1 इज फ्रॉम ऑफ 90 रुपीज. तो डॉलर कॉस्टली हो गया. अब हमें ज्यादा रुपी पे करके एक सर्टेन अमाउंट लेना पड़ रहा है. लेट अस से $1 लेना पड़ रहा है. तो इट विल डेफिनेटली बिकम कॉस्टली. जो भी इंडियंस अगर यूएस जाके पढ़ाई कर रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, दैट विल बिकम कॉस्टली. Next, government may benefit as it will reduce cost of servicing foreign denominated debt. So this is absolutely wrong statement. So it will not reduce, rather it will increase cost of servicing the foreign denominated debt. जैसे मान लीजिए
एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है और उसकी रेगुलर ईएमआई $1 देनी है, राइट? तो अर्लियर गवर्नमेंट को 80 रुपीज स्पेंड करने होते थे फॉर गेटिंग दैट $1, राइट? नाउ गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड 90 रुपीज टू गेट $1, तो वो नो रिड्यूस किया कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड डेब्ट की, इंक्रीज हो गई कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गई, राइट? तो इट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. देन इट मे बूस्ट फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो भी फॉरेनर्स होंगे दे विल बी हैविंग द डॉलर्स. अर्लियर अगर वो इंडिया में आते, लाइक लेट अस से $1 उनको स्पेंड करना था तो 80 रुपीज मिल रहा था. नाउ $1 स्पेंड करेंगे तो उसके लिए उनको 90 रुपीज मिल जाएंगे, तो उनके टर्म्स में उनकी जो वैल्यू है वो सस्ती हो गई, राइट? उनका ट्रिप का खर्चा सस्ता हो गया इन द सेंस. तो इट में बूस्ट द फॉरेन टूरिज्म इन द कंट्री. तो ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग एंड रेस्ट आर करेक्ट. तो 1, 2 एंड 4 ओनली. तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड अपने क्लियर करके रखिएगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट थीम फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स. ठीक है? सो पॉजिटिव इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. Then, which of the following is correct regarding the gold monetization scheme, GMS? Gold monetization scheme. First, the government has discontinued short-term, medium-term, and long-term deposits under the GMS. Second, the objective of GMS was to reduce reliance on gold imports. And third, it does not provide tax amnesty. तो क्या क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया, बट इसमें ध्यान रखेंगे ओनली मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैज बीन डिसकंटिन्यूड. द गवर्नमेंट हैज अलाउड दैट it is up to the discretion of banks whether they want to continue the short term bank deposits or not. ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म गोल्ड डिपॉजिट्स जो है वो बैंक को कंटिन्यू करना है या नहीं, ये बैंक के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, तो इसको अभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है. ऑलराइट, तो उसके कारण ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाता है. ठीक है. सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएमएस वाज टू रिड्यूस द रिलायंस ऑफ गोल्ड इंपोर्ट. यस, उसी के लिए था ये. ऑलराइट, क्योंकि मोर देन 90% गोल्ड जो इंडिया में यूज होता है दैट इज इंपोर्टेड, तो उसी से रिलेटेड था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो लोगों के पास अपने गोल्ड रखे हैं उनको प्रोडक्टिव वैल्यू देने की बात हो रही थी. ठीक है, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इट डज नॉट प्रोवाइड टैक्स एमनेस्टी, तो ये भी सही है. यहाँ पे कोई टैक्स एमनेस्टी की बात नहीं हो रही है, रादर देन टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह की बात हो रही थी. ऑलराइट, तो दैट इज दैट. तो ऑप्शन इज 2 and 3. ऑप्शन इज 2 and 3. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएंगे इसके. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लाइकली इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर आईएनआर सेल बाय स्वैप? ये ध्यान से देख लेंगे. सेल बाय स्वैप कैरीड बाय आरबीआई. आरबीआई करता रहता है. ऑलराइट, तो यूएस डॉलर INR सेल बाय स्वैप. तो यहां पे 2 थिंग्स आर परफॉर्म्ड. पहले लेग में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है? ऑलराइट, अगर इफ वी आर हैविंग आरबीआई एंड बैंक, ऑलराइट, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, आरबीआई इज गोइंग टू सेल डॉलर, और डिफरेंट वे में कह सकते हैं बैंक इज गोइंग टू परचेज डॉलर्स फ्रॉम आरबीआई. ऑलराइट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी इज गिवन टू आरबीआई, जो भी उस समय वैल्यू चल रही होगी डॉलर की. दैट इज द फर्स्ट लेग. देन आफ्टर सर्टेन पीरियड, जो भी स्वैप का पीरियड होगा, 1 year, 2 years, 6 months, 3 years, जो भी है, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, रिवर्स विल हैपन. आरबीआई एंड बैंक, ऑलराइट, so what will happen, bank will or RBI will get the dollars,
RBI will get the dollars and RBI will give the equivalent amount of value of rupee to bank. So this is what is happening when you are talking about US dollar INR sell by swap. Sell by swap, two stage process होता है. In the first leg, RBI will give dollars, or bank will purchase dollars from the RBI and will give equivalent amount of rupee to the RBI. In the second, जब वो term पूरा हो जाएगा swap period, then bank will sell to RBI the dollars and get the equivalent amount of rupees. So ये बहुत चीज ध्यान रखिएगा. This is what is happening. अब यहां पे देख लेते हैं इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स. ऑलराइट, तो यहां पे जब ये कर रहा है, इट इज नॉट लीडिंग टू इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व. यहां पे जब डॉलर दे रहा है आरबीआई इन द फर्स्ट लेग, ऑलराइट, डॉलर दे रहा है फर्स्ट लेग, तो इट इज नॉट द इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स. यहां पे इंक्रीज नहीं हो रहा, रादर देन ये आरबीआई जो डॉलर लाएगा कहां से लाएगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से लाएगा. So it will lead to decrease in forex reserves. Alright, so it is not correct. Then increase in the value of rupee. Increase in the value of rupee. Different way of saying is rupee appreciation. Appreciation of rupee. Appreciation of rupee. Alright, तो यहां पे इकोनॉमी में डॉलर इज इंजेक्टेड. डॉलर इज इंजेक्टेड. So dollar will be more in economy. Then value of dollar will decrease and value of rupee will increase. So this is a correct statement. This is a correct exchange. All right, and then check exchange rate volatility. So it is also done for to check the exchange rate volatility. Sudden outflow of dollars हो गया है, तो उसको चेक करने के लिए RBI can go into the sell by swap of foreign exchange. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो गया? फर्स्ट इज रॉन्ग, सो सेकेंड एंड थर्ड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी. राइट, सो दिस इज देयर. राइट, तो सेल बाय स्वैप क्या करता है? ए बैंक शैल बाय यूएस डॉलर फ्रॉम आरबीआई एंड साइमल्टेनियसली एग्री टू सेल द सेम अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर एट द एंड ऑफ स्वैप पीरियड. यही कर रहा है. तो दैट इज द आइडिया. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है. 10 साल पूरे हो गए हैं. डिकेड हैज बीन कंप्लीटेड बाय दिस स्कीम. सो क्या कह रहा है? इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Its objective is to provide collateral free loans to the non-corporate, non-farm micro enterprises, non-farm small micro enterprises. The maximum amount of loan under the scheme is 20 lakhs. All the loans under the scheme is provided by the मुद्रा बैंक. 2015 में लॉन्च की गई थी, तो अभी it has completed a decade of its existence. तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. ऑलराइट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इंटायर फंडिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. सेकेंड, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन्स टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ऑलराइट, तो इसकी स्कीम की तहत कोलेट्रल फ्री लोन दे रहा है. लोन लेने के लिए आपको कोई कोलेट्रल की कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सो कोलेट्रल फ्री लोन इज देयर. किसके लिए है? टू नॉन कॉर्पोरेट्स, नॉन फॉर्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड के लिए नहीं है. एक चीज ये ध्यान रखिएगा. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर द स्कीम इज 20 lakhs. तो तरुण प्लस जो हाईएस्ट कैटेगरी है 10 to 20 lakhs की. यस, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. And fourth, all the loans under the scheme is provided by Mudra Bank. So this statement is absolutely wrong statement. तो मुद्रा बैंक जो क्रिएट किया गया है, that is refinancing agency. Alright, वो इंडिविजुअल लोगों को लेंड नहीं कर रहा है.
लेंडिंग कौन करेगा? जो मेंबर फाइनेंस होगा, राइट? लेंडिंग बैंक कर रहा है, लेंडिंग आरआरबीज कर रहे हैं, एटसेट्रा, राइट? मुद्रा बैंक हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एक्टिंग एज ए रीफाइनेंसिंग एजेंसी, राइट? तो यहाँ पे लोन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो भी मेंबर लेंडिंग एजेंसीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, राइट? तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना? तो दैट इज व्हाट द आइडिया. सो दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 is correct, 2 is correct, 3 is not sorry, हाँ 3 is correct, and then fourth is not correct. फोर्थ इज नॉट करेक्ट, राइट? तो जो हम लोन कौन दे रहा है? जो हमारा मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, डिफरेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआई, ये जो लोन दे रहे हैं ये मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स. मुद्रा बैंक जो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी, ये सिंपली रीफाइनेंस के लिए है. इट डज नॉट लेंड डायरेक्टली, इट डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे. ठीक है. सो फोर्थ इज नॉट करेक्ट एंड रेस्ट ऑल थ्री आर करेक्ट. Next, consider the following statement regarding WTO agreement on fisheries subsidies. So it has recently come into force. तो ये एक important है. It is the first WTO's first multilateral agreement and with environmental sustainability at its core. So it is WTO's first multilateral agreement with environmental sustainability at its core. Second, it prohibits government support to illegal, unreported, and unregulated fishing activities and overexploitation of fishing stocks. And third, India is the member of the agreement. Right? So, abhi recently it has come into the force, WTO agreement on fisheries subsidies. So, it is the WTO first multilateral agreement with environmental sustainability at its core. तो ये सही है, ये सही चीज है, ये सही करेक्ट स्टेटमेंट है. Second, it prohibits government support, government subsidies to illegal, unreported, and unregulated fishing activities and exploitation of fishing stock. So this is also a ट्रू स्टेटमेंट. इसी के लिए ये फिशरीज एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज लाई गई है कि वो सारे गवर्नमेंट सब्सिडीज जो इलीगल फिशिंग, अनरिपोर्टेड फिशिंग, अनरेगुलेटेड फिशिंग या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिशिंग स्टॉक्स कर रहे हैं उसको रोकना होगा. ठीक है, तो मैराइन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज करना है. दैट इज व्हाट द आइडिया. Then India is a member of the agreement. So this statement is absolutely wrong statement. India is not the member. India is not the member. क्यों नहीं member है? वो बोल रहा है कि कि वो सारी कंट्रीज जो पहले से ऑलराइट बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर चुके हैं, ओवर फिशिंग कर चुके हैं, इलीगल फिशिंग कर चुके हैं, अनसस्टेनेबल वे में मरीन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर चुके हैं, उनके ऊपर ज्यादा सब्सिडीज गिराना चाहिए. ऑलराइट, तो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. उसी की वजह से इंडिया इज सेइंग दैट वी आर नॉट द मेंबर. ठीक है, तो इंडिया स्टैंड इज दैट वी आर वन ऑफ द लोएस्ट फिशरीज सब्सिडीज despite a large population and one of the disciplined nation in sustainably harnessing the fisheries resources. India does not exploit the resources indiscriminately like other advanced fishing nations. And India's fisheries sector primarily depends on several millions of small scale and traditional fishers. Therefore, those WTO members who have provided huge subsidies in the past and engaged in large scale industrial fishing, which is responsible for depletion of fish stock, should take more obligation. So सबके सामान नहीं लगाना है ना, यूनिफॉर्म नहीं करना, मोर ऑब्लिगेशन आपको लेनी चाहिए टू प्रोहिबिट द सब्सिडीज बेस्ड ऑन पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो इसके कारण इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग correctly describes the loss incurred by holding cash during the periods of high inflation to the erosion of its leading to the erosion of its purchasing power. Right? जब high inflation रहता है, high inflation, alright, so money loses its purchasing
power which is similar to loses its purchasing power. ये क्या कहना है? Akin, similar to, akin to, giving taxes. Giving taxes. टैक्स में भी आप लेट से 100 रुपीज कमाते हैं एंड 20% टैक्स आप सरकार को दे देते हैं, तो आपके पास अमाउंट कितना रहा? 80। तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई कि 80 ही है परचेजिंग पावर। सिमिलरली जब इन्फ्लेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से पर्सन इज अर्निंग 100 रुपीज, अर्लियर वन एप्पल प्राइस वॉज 20 रुपीज, तो person was able to buy 5 apples. Now inflation आ गया, inflation, and the price has increased to 25 rupees. 25 rupees. Now person is able to buy only 4 apple. तो परचेजिंग पावर कम हो गई। तो यहां पे सबसे जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है क्या है? दैट इज इन्फ्लेशन टैक्स। राइट, तो हाई इन्फ्लेशन पीरियड्स में जिनके पास मनी, करेंसी अपने पास रखते हैं एज ए कैश, ऑलराइट, तो उनकी वैल्यू उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऑलराइट, विच इज अकिन टू लाइक गिविंग टैक्सेस। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन टैक्स। यहीं पे सोचिए किसी ने हाई इन्फ्लेशन पीरियड है, फॉर एग्जांपल जैसे हाई इन्फ्लेशन है, ऑलराइट, ए इज कीपिंग करेंसी नोट्स अपने पास रख लिया है, एंड बी इज कीपिंग लेट अस से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ गोल्ड। तो इसकी वैल्यू तो घट गई, परचेजिंग पावर कम हो गई, बट गोल्ड का प्राइस लेट अस से कई बार अप्रिशिएट हो जाता है, मोस्टली अप्रिशिएट हो जाता है, तो इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो दैट इज व्हाट द आइडिया, दैट इज व्हाट द आइडिया। सो इट इज करेक्ट आंसर हियर इज इन्फ्लेशन टैक्स। ठीक है, तो दैट इज द idea. Then recently the government has notified the 4 labor codes in the country. In this consider the following. Under the Constitution of India, labor is subject under the union list. ठीक है, the second code on wages 2019 establishes a statutory right to minimum wages for all employees across both organized and unorganized sector. All right. Third, Code on Social Security 2020 extend social security benefits to all employees and workers covering both organized and unorganized sector. तो अभी रिसेंटली नोटिफाई कर दिया था 4 लेबर कोड्स गवर्नमेंट ने, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो यहां पे क्या होगा? लेबर इज नॉट अंडर यूनियन लिस्ट रादर देन इट इज कंकरेंट लिस्ट। ऑलराइट, बोथ union government and state government are can make laws on the labor. तो that is why बहुत सारे labor laws थे, that is why जो central government का था more than 44 labor laws थे, उसको consolidate करके 29 में लाए थे, and then now it has consolidated to 4 labor codes. Alright, जितने भी central लेबर लॉज थे उसको कंसोलिडेट कर दिया है गवर्नमेंट ने अंडर द 4 लेबर कोड्स। ठीक है, तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट लेबर। ठीक है, सेकंड, सो दिस इज नॉट करेक्ट। सेकंड, कोड ऑन वेजेस 2019 एस्टेब्लिशेस अ स्टैट्यूटरी राइट टू मिनिमम वेजेस फॉर ऑल। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, Code on Social Security extends social security benefits to all employees. So that is why also it is correct कि earlier social security benefits were limited to organized sector only. Now it has expanded the scope and it is also undertaking the organized sector. So both these statements are correct. So correct answer here is 2 and 3. ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा। Next, which of the following statement consider the following statement regarding the share buyback. All right, when the listed companies try to buy back the shares from their existing shareholders. All right, जो भी shareholders वहां पे हैं, the company tries to buy it. It refers to process when listed company buy its own share from the existing shareholders. So this is absolutely correct. It enhances the earning per share. तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज
नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में हो वो कम हो जाते हैं, ऑलराइट, देन अर्निंग पर शेयर्स इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाट द आइडिया, ऑलराइट। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स। तो अगर आई एम द प्रोमोटर, मेरा लेट अस से you know my stake in company is let us say 30%. Now I have decided कि ठीक है, we promoters of the company have decided we will buy back the shares, तो my share holdings में increase, so मेरा जो पकड़ होता है on the companies that will be more strengthened. तो दैट इज वाई कई बार इसके लिए भी कंपनीज प्रोमोटर्स गो फॉर शेयर बायबैक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इट इज नो इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द शेयर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग्स। ठीक है, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर, ऑल द थ्री आर करेक्ट हियर। ठीक है, नेक्स्ट with reference to Bima Sugam portal has been launched. Consider the following statement. It is a unified digital marketplace for insurance. Second, through it, users can buy, sell, service, renew, manage, and claim insurance. Right? तो बीमा सुगम पोर्टल हैज रिसेंटली बी लॉन्च्ड। तो ये इट इज अ यूनिफाइड डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर इंश्योरेंस, ऑलराइट। तो कॉमन प्लेस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थ्रू दिस portal, users can buy, sell, renew, service, claim इंश्योरेंस, ऑलराइट। तो थोड़ा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए दिस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय IRDAI। ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजंस फॉर लो इंपोर्ट ऑफ कॉर्न फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो इंडिया जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट इंपोर्ट करता है कॉर्न का फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या रीजन है, यही पूछ रहा है। इंडिया अलाउज अप टू 0.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कॉर्न इंपोर्ट्स एनुअली एट 15% ड्यूटी, और उसके बाद ऑलराइट एंड क्वांटिटीज बियॉन्ड दैट अट्रैक्टिंग 50% ड्यूटी। तो एक ये है। इंडिया डज नॉट परमिट एनी इंपोर्ट ऑफ कॉर्न दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये दो रीजन स्टेटमेंट में दिए हुए हैं। तो बोथ दीज रीजंस आर करेक्ट। इसी के लिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था कि यूएसए वाज हाईलाइटिंग दैट दे आर द मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉर्न इन द वर्ल्ड, बट इंडिया कुछ भी उससे इंपोर्ट नहीं करता है। तो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कि इंडिया डज नॉट परमिट एनी इंपोर्ट ऑफ कॉर्न दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, एंड जो टैरिफ है वो इस तरीके से लगाता है। बोथ दीज रीजंस आर करेक्ट रीजंस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम मित्रा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पीएम मित्रा स्कीम। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स टू डेवलप वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पीएम मित्रा किसके लिए है? टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। पीएम मित्रा पार्क्स की बात हो रही है, ऑलराइट। तो ओनली ग्रीनफील्ड साइट्स विल बी चूजन फॉर सेटिंग अप पार्क्स अंडर द स्कीम। सो ये गलत स्टेटमेंट है। बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड साइट, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइट। ब्राउनफील्ड मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ग्रीनफील्ड मतलब पूरा नए से बनाना होगा। तो both greenfield and brownfield site can be chosen for setting up parks under the PM Mitra scheme. So this statement is incorrect. ठीक है, तो यहां पे करेक्ट क्या हो गया? Only one. Only one. ठीक है, तो this scheme is also important. ठीक है, next, in the context of WTO special and differential treatment, consider the following. It refers to special provisions in the WTO agreement that grants developing and least developed countries greater flexibility, longer transition period, and special support in implementing the WTO agreements. So this is a correct statement, all right? So some certain special provisions are there within the WTO agreement. Those are called as special and differential treatment because they provide greater flexibility
longer transition period and special support in case of developing as well as least developed countries. ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रोविजन रहता है इनको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। Second, the Bali Ministerial Conference in December 2013 established a mechanism to review and analyze the implementation of spatial and differential treatment provisions. So this statement is also a correct statement. वो एक mechanism बना दिया था to review the implementation of spatial and differential treatment provisions. Third, recently India has announced that it will no longer seek access to spatial and differential treatment in current and new WTO agreement. तो ये इंडिया ने नहीं अनाउंस किया है, this has been announced by China. All right, this has been announced by China. So this is a not a correct statement. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सारी चीज हमने कवर की अपने रिकैप वाले वीडियो में, तो एक बार वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बेस इफेक्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट? तो एक चीज आप बहुत देख रहे होंगे कि अभी भी जो सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, स्पेशली सीपीआई जो हम बोल रहे हैं कि बहुत लो वैल्यू चल रहा है, 0.25 0.75% चल रहा है। वन ऑफ द थिंग विच इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू इज दिस, इट इज बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट क्या होता है? राइट, बेस इफेक्ट क्या होता है? राइट, तो इट रिफर्स टू चेंज इन बेस ईयर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो that is not correct statement. All right. It refers to change in basket of commodities for the measurement of inflation. So this is also not correct statement. It refers to influence of last year inflation level on the current year inflation rate. तो ये एक important है। तो this is what is called as base effect. All right. तो यही बार बार बात कर रहे हैं। Then it refers to change in inflation resulting from expansion of monetary base. This is not correct. So option C is correct here, base effect. All right. For example, if last year index was low, today's inflation will appear artificially high. अगर पिछले साल का बहुत ज्यादा रहा होगा तो today's inflation will appear artificially low. वो that is what the idea of base effect. ठीक है. So this is the idea. Question number 24. Consider the following pairs. Sagar Setu, it aims to improve the ease of doing business. Harit Sagar, it aims at achieving the zero carbon emission goal. Sagar Manthan, it aims to increase the fish production. How many of the above are correctly matched? तो correctly matched क्या है? It aims to improve the ease of doing business. So this is absolutely correct statement. Second, it aims at achieving the zero carbon emission goal. तो this is also correct statement. सागर मंथन इसके लिए नहीं है, फिश प्रोडक्शन के इंक्रीज करने के लिए नहीं है। तो करेक्टली मैच्ड आर ओनली टू पेयर, ऑप्शन बी। ऑलराइट, तो Sagar Setu, National Logistic Portal Marine has created a smartphone app, that is Sagar Setu, aimed at improving the ease of doing business. It enables real-time port operation, monitoring, as well as hand-led services for the port fraternity to access vessel cargo, container, finance, and regulatory authority data. Okay. Pair 2 is also correct. To match the greater objective of achieving the zero carbon emission goal, the Ministry of Port, Shipping and Waterways has launched the Harit Sagar Green Port Guidelines. The vision is to reduce carbon intensity and to develop an environment-friendly ecosystem at major ports. ठीक है, और जब हम सागर मंथन की बात कर रहे हैं तो इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो फिशिंग के इंक्रीज के लिए बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द आइडिया, so it is not correct. Next, the Union Cabinet approved a proposal to set up
regional wing of Peru-based International Potato Center. All right, uh, a premium research for development organization with a focus on potato and sweet potato at. कहाँ पे इसकी बात हो रही है? रीजनल विंग की बात हो रही है, जो पेरी बेस्ड इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है उसका रीजनल विंग इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। वो इंडिया में कहाँ बात हो रही है? तो दैट इज इन आगरा। ये भी रिसेंटली न्यूज में था, दैट इज इन आगरा। तो ये भी ध्यान रखेंगे, राइट। सो तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की बात करें, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन लीमा, दैट इज पेरू। इट वाज क्रिएटेड इन 1971 टू स्पेशलाइज ऑन पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या राइट। All right, so with this we have come to an end of this discussion. एक बार कमेंट में करके बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव गॉट करेक्ट एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव गॉट रॉन्ग। आई होप कि थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो पाया हो आपके प्रिपरेशन। ऑलराइट, चलो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।